وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال رسوله النبي الأمين المعين المطيع الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هما جنتك ونارك صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين تاج اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے اور حفظ قرآن کا یا پھر عالمیت یا فضیلت یا پھر تحقیق کی دستار اس کے سر پہ باندھی جاتی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ علماء کی شان بیان ہوگی، میرے بعد مفتی ناصر صاحب بیان کریں گے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حافظ قرآن کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھ لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا کہ جس پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ ایک حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اتنے بڑے منصب اور مرتبے کا مالک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا انعام ملے، لیکن ایک بعمل حافظ قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کی ماں کی بھی بخشش فرمائے گا، باپ کی بھی بخشش فرمائے گا، اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب محشر کے دن ملت کے نوجوانوں لوگ آئیں گے، بھیڑ لگی ہوگی، اسی بھیڑ میں چند لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے سر پہ ایک تاج رکھا ہوگا، ایسا عظیم تاج کہ جس تاج کی روشنی سورج اور چاند سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ اہل محشر دیکھ کے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سر پہ اتنے چمکیلے تاج رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی سوچے گا شاید یہ بڑے متقی لوگوں کی جماعت ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ دل میں سوچے گا، اتنے میں محشر میں ندا دینے والا کوئی ندا دے گا۔ لوگوں جن کے سر پہ آج یہ عظیم تاج رکھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کن کے سر پہ تاج رکھا ہے؟ جواب ملے گا نہیں جانتے کون ہے یہ، محشر میں ندا دینے والا ندا دے گا۔ یہ ان کے سر پہ تاج رکھا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، علم نبی کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ حافظ کی عظمت کا عالم ہے۔ جب حافظ کے مقام کا یہ عالم ہے تو قاری کے مقام کا عالم کیا ہوگا، عالم کے مقام کا عالم کیا ہوگا، فاضل کے مقام کا عالم کیا ہوگا، ایک مفتی کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو علم دولت علم دین سے آراستہ فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن کی دولت سے ہمارے گھروں کو روشن و منور فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں جی لگا کر درود پاک پڑھے، پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحوی باد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری تقریر کا عنوان جو اراکین کمیٹی سے ملا ہے، عظمت والدین، اس پہ ہماری گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ مکمل تقریر اسی پہ ہوگی۔ اور آج وقت بھی اچھا ہے، میرے سامنے نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، بہت مجمع ہے نوجوانوں کا، بوڑھے کم ہیں، اور یہ نوجوان وہی ہے کہ جن میں ہر ایک کا باپ ہے اور ماں ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کا باپ اور ماں، لیکن شاید کسی کا باپ نہ آیا ہو، کوئی گھر میں ٹھنڈ کی وجہ سے 80 سال کا باپ لحاف کے اندر، کمبل کے اندر کمرے میں بیٹھا ہو۔ ہم لوگ جلسے میں آ گئے، نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، دنیا میں 2 شخص ایسے ہیں، 2 شخص کہ جن کی عظمت کا مقابلہ انسانوں میں اور لوگ نہیں کر سکتے۔ 2 شخص، میں علماء کی بات نہیں کرتا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ علماء کا مجمع ہے اور علماء کے مجمع میں زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے۔ تو 2 انسان ایسے ہیں کہ جن کی عظمت کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کون؟ دنیا جانتی ہے کہ ایک کو محبت سے باپ کہتے ہیں اور دوسری کو محبت سے ماں کہتے ہیں۔
क्या बोली? एक को बाप और दूसरे को माँ। मेरी तकरीर वो लोग ज्यादा गौर से सुने कि जिनकी माँ शाम को बेटा घर से निकलता है ना, तो निकलते हुए माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ लेती है, लगते जिगर घर को जल्दी आ जाना शाम को, इसलिए कि 1 घंटा भी तुझसे दूर होती हूँ ना, तो मुझको तेरी जुदाई बड़ा परेशान करती है। इनमें वो लोग गौर से सुने कि जिन्होंने जिंदगी के 20-25 साल अपने बाप को तकलीफें दी हैं, अपनी माँ को तकलीफें दी हैं। वो लोग गौर से सुने कि माँ रो रो के दरवाजे पे आंसू बहाती रही, मौला मेरे बेटे की आदतों को ठीक कर दे, मौला मेरे बेटे की परेशानियों को दूर कर दे। याद रख, दुनिया में दुआ के लिए जो दिल तेरे बाप और तेरी माँ के पास है, वो दुनिया में किसी और के लिए और के पास दुआ के लिए वो दिल नहीं है। आप कुरान की बहुत सी आयतें पढ़ेंगे और बहुत सी हदीसें पढ़ेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने कुरान में क्या मर्तबा माँ और बाप का बयान फरमाया है, और हदीस रसूल में मेरे नबी ने क्या मर्तबा माँ और बाप का बयान फरमाया है। शुरू कर रहा हूं मुस्तफा की इस हदीस के साथ। साहिब दिल पे हाथ रख के सुनना, और अगर असर कर जाए तो चंद आंसुओं के कतरे अपने गुनाहों पे नादिम होके जरूर बहा देना। ये मजमा बहुत कम इतनी तादाद में मिलता है। देख, मुस्तफा की बारगाह है और नबी की बारगाह में मेरे नबी का एक सिहाबी आया, पूरा सिहाबी, बूढ़ा, इतना बूढ़ा सिहाबी कि नबी के सिहाबी से चलना नहीं हो रहा है, गिरते फिरते तेरे रसूल की बारगाह में आ गया, और आने के बाद नबी को सलाम किया है, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। नबी को सलाम का जवाब दिया, तेरे रसूल ने सलाम का जवाब दिया है अपने सिहाबी के सलाम का। बैठ गया नबी का सिहाबी, मुस्तफा के चेहरे को टिकटिकी बांध के देखता रहा, टिकटिकी बांध के देखता रहा। इतने में नबी के लब खुले और मेरे रसूल इरशाद फरमाते, सिहाबी बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो नबी के कौनैन के सिहाबी के लब खुले और मेरे नबी का सिहाबी अर्ज करता है, आका अपने बेटे की शिकायत लेके आपके पास आया, आका दिल दुखा है बहुत ज्यादा। आज जो अपनी माँ का दिल दुखा के आए हैं, गौर से सुनना, जो अपने बाप को गालियां दे के आए, गौर से सुनना। नबी के कौनैन का सिहाबी कहता, आका दिल पे चोट लगी है और उस चोट का इलाज आपकी बारगाह से कराने आया हूँ। नबी के कौनैन फरमाते, सिहाबी बताओ तो सही बात क्या है? तो नबी का सिहाबी अर्ज करता है, आका मेरा बेटा अपने सामान को मुझे हाथ नहीं लगाने देता, अगर कोई चीज छूता हूँ तो बेटा कहता खराब हो जाएगी, कोई चीज उठाता हूँ तो बेटा कहता खराब हो जाएगी। मेरा बेटा मेरी चीज को, किसी अपनी चीज को हाथ लगाने नहीं देता। नबी के कौनैन फरमाते, जा अपने बेटे को साथ लेके आना, कल का सूरज निकला है। नबी के कौनैन का सिहाबी अपने साथ अपने बेटे को लेके आ गया है, नबी के कौनैन की बारगाह में बैठा है। ए नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आज नौजवानों की तादाद मेरे सामने बहुत ज्यादा है, जरा गुफ्तगू को सुनते चले जाइएगा। नबी का सिहाबी है, अपने लखते जिगर का हाथ पकड़ के लेके आ गया, नबी के कौनैन के पास बैठ गया है कि इतने में नबी के कौनैन फरमाते, ये तुम्हारा लखते जिगर तुम्हारा बेटा है। सिहाबी की आंख में आंसू आ गए और नबी का सिहाबी कहता है, या रसूल अल्लाह, तंग दस्ती में इसको पाला है, आका मजदूरी करके इसको पाला है, आका कई कई दिन का फाका किया है, लेकिन अपने लखते जिगर की जरूरतों को पूरा किया है। आका जिंदगी के 25 साल अपने बेटे को इस हैसियत से पाला है कि इसकी सर्दी का भी ख्याल रखा है, इसकी गर्मी का भी ख्याल रखा है। आका इसकी आंख में आंसू नहीं आने दिए। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अब नबी के कौनैन फरमाते, तुम ये बताओ कि तुम्हारी शिकायत क्या है? बेटा सामने बैठा हुआ है। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, वो पूरा कहता है, आका अब जब मैं अपने बेटे की किसी चीज पे हाथ लगाता हूँ तो मेरा बेटा कहता है, अब्बा ये चीज खराब हो जाएगी, ये चीज खराब हो जाएगी, ये चीज खराब हो जाएगी। नबी के कौनैन को जलाल आ गया है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सिहाबी के लखते जिगर, आज तू अपने बाप से ये कहता है कि ये चीज खराब हो जाएगी, क्या तू अपने बचपने को भूल गया है
کہ جب تیرا باپ تجھ کو کوئی چیز لا کے دیتا تھا تو اس کو توڑ بھی دیتا تھا، باپ دوسری لا کے دیتا تھا تو اس کو خراب بھی کر دیتا تھا، باپ دوسری لا کے دیتا تھا۔ کیا تو اس ٹائم کو بھول گیا ہے کہ جب تو رات کی تاریکیوں میں بھی اپنے باپ سے کسی چیز کی ضد کرتا تھا تو تیرا باپ اپنی ساری خواہشات کو ختم کرنے کے بعد تیری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا؟ نبی یہ کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، اب جب اتنا میرے نبی نے کہا ہے تو مصطفیٰ نے اپنا دائنا ہاتھ اٹھایا ہے اور اپنے نبی کے اپنے صحابی کے بلکتے جگر کے سینے پہ مارا ہے، اور مارنے کے بعد یہ کہنے لگے ہیں انت و مالوک لی ابی کا، انت و مالوک لی ابی کا، انت و مالوک لی ابی کا۔ اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہونے والے سن لے، یہ تیرا نبی کہتا ہے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کے مطلب کوئی بیٹا اپنے باپ کو اپنے مال کے تصرف سے روک نہیں سکتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مصطفیٰ نے کہا ہے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی اپنے باپ کا ہے۔ اب نہ جانے کتنے بیٹے ایسے ہیں کہ باپ سردی میں تڑپتا ہے، بیٹے کو فکر نہیں ہوتی، باپ دوائی کی یہ گولی کے لیے تڑپتا ہے، بیٹے کو فکر نہیں ہوتی، ماں ایک آنچل کے لیے تڑپ رہی ہے، بیٹے کو فکر نہیں ہوتی۔ وہ بیٹا جو عید کی پارٹیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ جا جا کر کے بتاتا ہے، اسی بیٹے کو دیکھو، ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، باپ گھر میں تڑپ رہا ہے، باپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، ماں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، لیکن یہ دوستوں کے ساتھ جا جا کر کے کبھی ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہے۔ میں ہوئی حلق لوں کے ان خوش عقیدہ سنی نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نماز بھی پڑھنا اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنا، روزہ بھی رکھنا، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنا، اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ تم نماز میں جنت ڈھونڈتے ہو، تم روزے میں جنت ڈھونڈتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں یہ خدا کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ صاحب کبھی سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماں باپ کا دل مت دکھانا، کبھی ماں باپ کو چوٹ مت دینا، بہت عمدہ، کبھی نہیں۔ صاحب بہت نرم دل ہوتا ہے ماں باپ کا، بہت نرم دل۔ تم نے اس دل کی کبھی قدر دیکھی کی؟ تنہائی میں جا کے میری گفتگو کے ان پہلوؤں پہ غور کرنا۔ قرآن کا 15واں پارہ ہے، 15واں پارہ، اور اس 15ویں پارے میں میرا رب فرماتا ہے، حدیثیں بھی کوٹ کروں گا اور قرآن کی آیتیں بھی۔ یہ کام نہیں ہے کہ ایسے ہی بول بال کے چلا جاؤں، حدیثیں بھی پیش کروں گا، قرآن کی آیتیں بھی۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا عبادت اللہ کی کرو، آسان ترجمہ بتا رہا ہوں، لفظی نہیں، عبادت اللہ کی کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہاں ان کے ساتھ اونچی آواز سے مت بولنا، اگر سرہانے وہ اگر چارپائی پہ بیٹھے ہو نا ان کے سرہانے مت بیٹھنا، ہے نا۔ آگے اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تمہاری موجودگی میں تمہارے سامنے تم حیات ہو، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو کبھی ان کو اف تک مت کہنا، ان کو ڈانٹنا مت، ان کو گالیاں مت دینا، ان کو اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کو ستانا مت۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ہمیشہ ان سے نرم بات کرنا، محبت کی بات کرنا، ہاتھ چوم کے بات کرنا، ماں باپ کے قدموں کو چوم کے بات کرنا۔ نبی یہ کونین کا کلمہ پڑھنے والوں آؤ ذرا دیکھتے چلے جائیے گا، یہی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ آؤ اسی کے تعلق سے ایک حدیث بھی سماعت کر لو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں نبی کے صحابی ہیں، نام ان کا ابو امامہ ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے
اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما، نبی یہ کونین کے دیوانوں کہتے ہیں آقا یہ بتا دیں کہ ایک بیٹے کے ایک باپ اور ماں کا اس کے بیٹے پر حق کیا ہوتا ہے، مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتو کا ونارو، ہما جنتو کا ونارو، ہما جنتو کا ونارو۔ ماں باپ کی عظمت کے بارے میں اور مقام کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سن لو، میرے نبی فرماتے ہیں تیرے جنت بھی تیرے ماں باپ ہے، تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ ہے۔ اب نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک شخص جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، ایک شخص آرام کا گھر بھی ہے اور عذاب کا گھر بھی ہے، ایک شخص ملت کے نوجوان یہ آشائش کا گھر بھی ہے اور آگ کا گھر بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ہما جنتو کا ونارو، تیری جنت بھی تیرے ماں باپ ہے، تیری دوزخ بھی تیرے ماں باپ ہے۔ گویا کہ نبی کے کونین کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا ہے، اگر تم نے ان کی خدمت کر لی تو تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، لیکن اگر تم نے ان کا دل دکھایا ہے، تم نے ان کو ستایا ہے، تم نے ان کو پریشان کیا ہے، تم نے ان کی شان میں گستاخیاں کی ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں ہما نارو، وہ تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ تو اس بڑے مجلس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کبھی ماں باپ کا دل مت دکھانا، کبھی ماں باپ کو مت ستانا، کبھی ماں باپ کو مت تڑپانا، کبھی ماں باپ کو گالیاں مت دینا، کبھی ماں باپ کی شان میں گستاخی مت کرنا۔ ہاں اگر ماں باپ کے سامنے آنا ہو تو محبت سے ماں باپ کو سلام کر لیا کرو، اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لیا کرو، ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو، اپنی ماں سے محبت سے بیٹھ کے باتیں کر لیا کرو۔ نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں اگر تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دن میں محبت سے ایک مرتبہ دیکھ لو گے تو رب تبارک و تعالی ایک نفلی حج مقبول کا ثواب تم کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے نوجوان صاحب ماں نے بڑی پیار سے شادی کر دی بیٹی کی، بہت تمنا تھی، بیٹا 25 سال کا ہو گیا، 25 سال کا، جس بیٹے کو خون پلا کے پالا، خون پلا کے، جس بیٹے کو 25 سال کا بیٹا ہو گیا، ماں کی تمنائیں تھی کہ ایک چاند سی دلہن اپنے بیٹے کی لے کے آئیں گے، چاند سی دلہن، تاکہ وہ میرے بیٹے کی دلہن بڑھاپے میں میری خدمت کرے، میری خدمت کرے، بیٹے کو گھر پہ رکھ کے صحیح گھر کا ماحول بنائے، صحیح گھر کا ماحول۔ بڑی کفاف کے ساتھ شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد ابھی چند دن گزرے تھے، چند دن، اور چند دن ایسے گزرے کہ بیٹے نے اپنی بیوی کے چکر میں آ کر کے بیوی نے کہا، بیوی نے اب تو تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، کافی بوڑھے ہو گئے، نہیں ہوتا ان کے ساتھ گھر کے اندر رہنا، نہیں ہوتا، رات کو کھانستے ہیں، دن کو پریشان کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے ہیں، نہیں ہوتا ان کے ساتھ رہنا۔ یہ شوہر کہتا بیوی پھر کیا کیا جائے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ گھر الگ ہونا، گھر الگ ہونا، ایک بیٹا ہے، دوسرا کوئی بیٹا نہیں۔ جس بیٹے کو پالنے کے لیے باپ نے تین ہڑگلی کی سرزمین پر آٹو چلائے، جس بیٹے کو 25 سال تک جوان کرنے کے لیے ماں نے گھر میں جھاڑویں لگائیں، گھر کو صاف کرنے کی ٹوٹیاں کی، جس بیٹے کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے ماں نے نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا ہے، اکیلا بیٹا ہے، آج وہی اکیلا بیٹا اپنی بیوی کے چکر میں آ کر کے ماں کو گھر سے الگ کر دیا، باپ کو گھر سے الگ کر دیا۔ میں ان بیٹوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کبھی دیکھا کرو اپنی 25 سال کی زندگی کو، 25 سال کی، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس رات تو پیدا ہوا تھا تیری ماں نے تجھ کو گود میں لے کر کے اپنے سارے غم بھول گئی تھی، تھوڑا پڑا ہوا ہے، ماں نے تجھ کو اپنے پستان کے دودھ پلا کے پالا ہے، 2 سال کی تیری زندگی ہو گئی ہے، ابھی لقمے کو اٹھانا نہیں جانتا ہے، منہ میں چبانا نہیں جانتا ہے، لیکن یہ تیری ماں ہے کہ جب تجھ کو رو تو تجھ کو بھوک لگتی تھی، چچا کو کوئی معلوم نہیں کہ بیٹا رو کس لیے رہا ہے، بھائی کو کچھ معلوم نہیں رو کس لیے رہا ہے، لیکن تیرے رونے کو تیری ماں سمجھتی
है, तेरे भूख लगने को तेरी माँ समझती है, तेरी जरूरतों को तेरी माँ समझती है। 8 साल का तू हो गया, तेरी माँ ने तुझको सही तरीके से तरबियत दी है। एक दिन वो भी आया है कि जब रमजान के रोजे गुजरे हैं और ईद का चांद दिखने वाला है, महल्ले के तमाम बच्चे, गरीबों के नहीं अमीरों के बच्चे ईद के लिए कपड़े लेकर के आ रहे हैं। ये मिल्लत के नौजवानों जिसका बाप मजदूरी करता है, माँ घरों के झूठा साफ कर करके जिंदगी गुजारती है, इस बेटे ने रास्ते में खड़े होकर देख लिया पड़ोस का एक बच्चा अपने साथ ईद की खुशियां लेने के लिए कपड़े लेके आ रहा है। इसने आके अपनी माँ से कहा है, अम्मा जान पड़ोस का बेटा कपड़े लेके आया है, ये खिलौने और सामान लेके आया है। माँ दिल मेरा भी करता है कपड़े पहनो, दिल मेरा भी करता है खिलौने लूं। मिल्लत के नौजवानों, ये बाप के जिसके हाथ काम करते करते मोटे हो गए हैं, माँ रात को अपने बेशोहर से कहती है बेटा कपड़ों की जिद कर रहा है, बाप की आंख से आंसू आ गए। मजदूरी इतनी नहीं होती कि बेटे के लिए कपड़े ला करके दिए जाएं, लेकिन सुबह उठ करके ये बाप फजर के बाद निकला है किसी अमीर की चौखट पे, और जाने के बाद उससे उधार के तौर पर कुछ पैसे मालूम किए हैं, उसने दे दिए हैं। लेकिन तू क्या जाने 12 घंटे तेरे बाप ने किसकी गालियां बर्दाश्त की है, 12 घंटे तेरे बाप ने कितने कितने काम किए हैं, पूरा दिन तेरे बाप ने सर के पसीने को कदमों में बहाया है, लेकिन ईद के दिन तेरे लिए कपड़े लाके दिए हैं। खुद पुराने कपड़ों में ईद कर ली है, खुद पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजार ली है, लेकिन तेरे कपड़े का ख्याल तेरे बाप ने रखा है, तेरे खर्च का ख्याल तेरे बाप ने रखा है, तेरी परेशानियों का ख्याल तेरी माँ ने रखा है। लेकिन नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, आज तू जवान हो गया है, तेरी माँ ने तुझको शादी करके नहीं बड़ी दुल्हन ला के दे दी है। तो आलम ये है कि शादी के चंद दिन के बाद तू अपनी दुल्हन को लेकर के पिकनिक मनाने के लिए कभी मैसूर जा रहा है, कभी मिल्लत के नौजवानों अजमेर जा रहा है, और अजमेर जाने के बाद गरीब नवाज के मजार पे कहीं 10,000 की चादर डाल रहा है, कहीं 20,000 की चादर डाल रहा है। उन लुटेरे अजमेर के राबसी मुजाहिरों के लिए नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, और तू ये सोचता है कि 20,000 की चादर से तेरा गरीब नवाज खुश हो जाएगा। माँ एक दुपट्टे के लिए घर पे तड़प रही है, बाप गोलियों के लिए घर पे तड़प रहा है, घर में राशन खाली हो गया है। मिल्लत के नौजवानों, तेरी माँ के कपड़े घर में फटे हुए हैं, लेकिन तू अपनी कमाई को इस्तेमाल करने के बाद पिकनिक मनाने के लिए कभी ऊटी जाता है, कभी मनाली जाता है, कभी अजमेर की सरजमीन पे 10,000 की चादर गरीब नवाज के मजार पे चलाता है, साबिर पाक के मजार पे चलाता है। मिल्लत के नौजवानों, पूछो उलमाए किराम से, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, जिस माँ को नाराज करने के बाद, जिस बाप को नाराज करने के बाद तूने 10,000 की चादर गरीब नवाज की दरगाह पे चलाई है, वो चादर तेरे काम आने वाली नहीं है। अगर तू 100 रुपए का दुपट्टा अपनी माँ के सर पे डाल देता और तेरी माँ तेरे लिए ताज्जुद के वक्त उठ करके दुआ कर देती, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया में किसी के पास भी वो दिल नहीं है जो दिल दुआ के लिए तेरी माँ और तेरे बाप के पास है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, बहुत। कभी माँ बाप को मत सताना, कभी माँ बाप को मत उनका दिल दुखाना। ये तुम्हारे माँ बाप क्या तुमसे दौलत मांगते हैं? दौलत? तुमसे गाड़ियां मांगते तुम्हारे माँ बाप, कपड़े मांगते नहीं। तुम्हारे माँ बाप कभी तुमसे कपड़े नहीं, दौलत का सवाल नहीं करते। हाँ, एक चीज का सवाल करते हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप एक चीज का सवाल तो जरूर करते, लाखों की दौलत एक तरफ, लेकिन शाम को जब काम करके घर आया करो ना, शाम को खाना खाया करो, पहले माँ बाप को सलाम किया करो, और उसके बाद चंद लम्हे अपने माँ बाप के पास बिताया करो। चंद लम्हे, काम से आकर के डायरेक्ट अपनी बीवी के कमरे में नहीं, बीवी के कमरे में नहीं। मैंने तो ऐसे भी नौजवान देखे, ऐसे भी। यार, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, वजह क्या है? वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। बरेली का स्टेशन है, बरेली का एक 80 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा
कपड़े फटे हुए हैं, स्टेशन पे भीख मांग रहा है, भीख। 80 साल का बूढ़ा। साहब, आप जानते हैं कि 80 साल के बूढ़े की हालत क्या होगी? है? हाथ हिलते हैं, कदम हिलते हैं। गौर से सुनिएगा जवान, और मेरी माँ और बहनें भी गौर से सुने। 80 साल का तकरीबन बूढ़ा स्टेशन पे भीख मांग रहा है। कई बार देखा आते जाते। एक दिन पूछ लिया, अब्बा जान जरा ये बताओ, एक जमाने से इस स्टेशन पे भीख मांग रहे हो बरेली के, क्या औलाद नहीं है? औलाद नहीं है? औलाद नहीं है? बूढ़े की आंख में आंसू आ गए, रोने लगा बूढ़ा। न जाने कितने घरों की ये कहानियां। बैठ गया, रोने लगा। मैंने सहारा दिया, बूढ़े को पानी की एक बोतल दिया, बजान पी लो। हाथ कांपते हुए पानी की बोतल को हाथ में लिया, मुंह से लगाया, पिया। लेकिन आंसुओं के लगातार कतरे उस 80 साल के बूढ़े की आंखों से जारी हैं। मैंने कहा, बाबा रोने की वजह क्या है? क्यों रो रहे हो? इस 80 साल की उम्र में इतना रो रहे हो? इतना? जवान मेरी तकरीर को गौर से सुने। वो बूढ़ा कहता है, हजरत आपने जब कहा ना कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तो मेरे दिल में वो औलाद याद आ गई कि जिसको बचपन में मैंने मजदूरी कर करके पाला है। मुझको वो औलाद याद आ गई कि जिस औलाद ने रात को 12 बजे भी अगर मुझसे किसी चीज का सवाल किया तो मैंने न रात को देखा, न बरेली और यूपी की ठंडक को देखा। उठा और कहने लगा, चलो मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है, कुछ मांगा है। मैंने कहा, कितने बेटे, कितनी बेटियां? तो वो कहने लगे, हजरत 2 बेटे हैं और उन 2 बेटों में तकरीबन 40 बीघे मेरी जमीन है। 3 बेटियां हैं, शादी बेटियों की भी कर दूं, शादी बेटों की भी कर दूं। मैंने कहा, इतने अमीर होकर भीख मांगने की जरूरत क्या है? कभी अपने बाप की जिंदगी को देखा करो, अपनी माँ की जिंदगी को देखा करो। जरूरत क्या है 40 बीघे जमीन होकर भीख मांगने की? मिल्लत के नौजवानों, इस बाबा की चीख निकल गई और रोते रोते कहने लगे, मौलाना साहब मुझसे मेरे दिल की फरियाद क्या सुनते हो? बड़ी शौक से बेटों को पाला था, बेटियों की शादी की थी और मेरे दिल में उम्मीद यही थी कि जिस बेटे की जरूरतों को मैंने पूरा किया है, कल जब मुझको जरूरत होगी तो मेरी जरूरतों को मेरा बेटा पूरा करेगा, मेरा लख्ते जिगर पूरा करेगा। लेकिन जैसे ही उसकी शादी करके दुल्हन उसके घर में आई है, बेटा तो वही है, हाथ अब भी उसके वही है जिनको मैं चूमता था, लब अब भी वही है जिनको मैं चूमता था, पेशानी अब भी वही है जिनको मैं चूमता था, रुखसार अब भी वही है जिनको मैं चूमता था। अगर वो रोता था तो अपने इसी सीने से अपने उन बेटों को लगाता था। लेकिन चंद साल शादी को गुजरे हैं, बीवी की मिल्लत के नौजवानों, औरत कहने लगी कि तुम्हारा बाप मुझको तंग करता है, मेरी बीवी का भी इंतकाल हो गया। नतीजा ये निकला, बाप ने भी बेटे ने भी घर से निकाल दिया है, दूसरे बेटे ने भी घर से निकाल दिया है। अब किसके दर पे जाऊं, कहां के करूं, किसके दर पे जाऊं, कहां जिंदगी गुजारूं? बेटियों के घर पे जा नहीं सकता, कहां जाकर के अपनी जिंदगी के बाकी लम्हात गुजारूं? समाज में न जाने कितने बाप अब भी ऐसे हैं कि जिनके बेटे तो शराब पीते हैं, न जाने कितने बाप अब भी ऐसे हैं जिनके बेटे जुआ खेलते हैं, न जाने कितने बाप अब भी ऐसे हैं कि जिनके बेटों के हाथ में 1-1 लाख के मोबाइल हैं। लेकिन उनके बाप की जिंदगी को देखो, 70 साल की उम्र में भी ऑटो चला रहे हैं। उनकी माँ की जिंदगी को देखो, 50 साल की उम्र में भी घर में बाई का काम करती चली जा रही है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला ऐसे बेटे किसी के ना हो जो बेटे अपने बाप की परेशानियों को ना समझते हो, अपनी माँ की दिक्कतों को ना समझते हो, अपने बाप की दिक्कतों को ना समझते हो। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, कितने भी नमाज पढ़ने वाले हो, कितने भी रोजा रखने वाले हो, अगर अल्लाह राजी होगा तो पहले माँ बाप को राजी कर लो, अपने माँ बाप के कदमों को चूम लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हालांकि की गलती पर तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए और माँ बाप ने तेरे लिए दुआ कर दी तो रब तबारक व तआला के ये बंदे दुआ अपनी ज़बान से करेंगे, अल्लाह ताला तेरे माँ बाप की दुआ तेरे लिए कबूल फरमा लेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मस्त
مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، عظمت قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی. واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ مفتی صاحب، ماں باپ ماشاء اللہ، بہت. ہاں 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 ہاں، گردن کو نیچے مت کرنا. ہاں مت کرنا گردن کو نیچے. اللہ کا ایک ولی ہے، نام مالک بن دینار ہے. کیا کیا زور سے بولو، زور سے بولو. واہ 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 واہ. مالک بن دینار، مالک بن دینار. عظمتوں کا کوئی جواب نہیں. اللہ کا بڑا عظیم ولی، بڑا عظیم. گھر سے نکلے حج کرنے کے لیے. ماشاءاللہ مولانا ناصر صاحب تشریف لائے. ماں کا دل تو نہیں دکھاؤ گے؟ زور سے بولو. کبھی باپ کا دل تو نہیں دکھاؤ گے؟ ہے نا؟ اگر ناراض ہو تو باپ کو راضی کر لو، ماں کو راضی کر لو. اس لیے کہ دعا کے لیے جو دل تیری ماں اور تیرے باپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس، بولو کسی کے پاس نہیں ہے. اور ایک حدیث سماعت کر لے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہ دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدی. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والے حدیث کا ترجمہ سماعت کر لے. میرے نبی فرماتے ہیں، اور نبی کے کونین کے صحابی ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے. نبی کے کونین نے فرمایا کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جو دعا کر دیں تو دعا بھی قبول ہو جائے، بد دعا کر دے تو بد دعا بھی قبول ہو جائے. نبی کے کونین کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ 3 لوگ کون کون ہیں کہ جو دعا کر دے تو دعا بھی قبول ہو، بد دعا کر دے تو بد دعا بھی قبول ہو؟ تو نبی کے کونین فرماتے ہیں پہلا تو مظلوم ہے. مظلوم، اگر کسی مظلوم کے حق میں، کسی ظالم کے حق میں کسی مظلوم نے دعا کر دی ہے تو مظلوم کی دعا بد دعا اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے. تو گویا کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کبھی کسی کا دل مت دکھانا، کبھی کسی کو ستانا مت، کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا. اور یہ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے ظلم کی بات تو الگ ہے، اسلام تو یہ بھی کہتا ہے انسان کی بات تو الگ ہے. کبھی جانوروں پر بھی ظلم مت کرنا، جانوروں پر بھی ظلم مت کرنا. اس لیے کہ مظلوم بد دعا جب کرتا ہے تو مظلوم کی بد دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. اور تیسرا میرے نبی فرماتے ہیں وہ دعوت المسافر دعوت المسافر کہ رب تبارک و تعالی مسافر کی دعا بھی بہت جلد قبول فرما لیتا ہے. یعنی کہ اگر تمہارے یہاں سے کوئی مسافر نکل رہا ہے، اس کے ساستے کا سامان ختم ہو گیا ہے، خرچ کے لیے پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو کسی سنی مسلمان نے مسافر کو بلایا ہے اور بلانے کے بعد اس کو کپڑا دے دیا ہے، سفر کا خرچہ دے دیا ہے. تو مسافر جب تیرے دسترخوان سے کھانے کے بعد اور رب کی عطا کردہ نعمتیں تیرے گھر سے لینے کے بعد جب تیرے لیے دعا کرے گا تو رب تبارک و تعالی مسافر کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور تیسرا شخص میرے نبی فرماتے ہیں وہ دعوت الوالدی علی ولدی کہ لڑکے کے ماں باپ اگر لڑکے کے لیے دعا کر دیں تو اللہ وہ بھی قبول فرما لیتا ہے، اور اگر بد دعا کر دے تو وہ بھی قبول فرما لیتا ہے. تو کبھی ماں باپ کی بد دعا مت لینا، ماں باپ کی بد دعا مت لینا. ہاں ہاں ہمیشہ ماں باپ کی دعا لینا، ہمیشہ ماں باپ کی دعا لینا. اللہ کی عزت کی قسم جو بچہ ماں باپ کی دعا لے کر کے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس بچے کو پوری دنیا میں سلامتی عطا فرماتا ہے. تو مالک بن دینار ہے، بہت خوب، بہت خوب. مالک بن دینار اللہ کا ولی، بڑا عظیم ولی، بڑا عظیم. حج کرنے نکلے اور حج کرتے کرتے جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے پہنچے، مالک بن دینار نے کعبے کا طواف کرتے کرتے لوگوں کو دیکھا، کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کی آنکھ میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی طواف کرتے کرتے اپنے ماں باپ کے لیے دعا، کوئی بھائی کے لیے دعا، کوئی رشتہ داروں کے لیے دعا، کوئی دوسرے لوگوں کے لیے دعا. مالک بن دینار کہنے لگے اور دل میں سوچنے لگے یا اللہ یہ تیرا گھر کعبہ ہے، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، لاکھوں لوگ حج اور طواف کرنے کے لیے
अपने अपने घरों से तेरे घर को आते हैं, तवाफ करते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, मुस्तल्फा जाते हैं, मिना जाते हैं, अरफात में जाते हैं। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले मालिक बिन दीनार सोचने लगे कि मौला तबारक व तआला, लेकिन इनमें किसको क्या मालूम है किसका हज तू कबूल करेगा और किसके हज को तू रद्द फरमाएगा। रब तबारक व तआला की इज्जत की कसम, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले मालिक बिन दीनार इतना सोच रहे हैं और मक्का की सरजमीन पर रात को अपने आरामगाह पे जाकर के जब सोते हैं तो इनको ख्वाब में क्या दिखा कि मालिक बिन दीनार तुम ये सवाल कर रहे थे कि लाखों लोग तवाफ काबा करने के लिए आते हैं, मुस्तल्फा के लिए आते हैं, सफा मरवा की सही करने के लिए आते हैं, हज करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या सच का सबका हज कबूल हो जाता है या किस किस का हज कबूल होता है, किसका हज उसके मुंह पे मार दिया जाता है। रब तबारक व तआला की इज्जत की कसम, मालिक बिन दीनार जब ख्वाब में सोए हैं रात को तो इनको ख्वाब में क्या दिखा। रब तबारक व तआला ने मालिक बिन दीनार को इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दीनार सुनो सुनो, तुम्हारा सवाल ये था ना कि कितनों का हज कबूल होता है और कितनों का हज मरदूद होता है। मालिक बिन दीनार को ये कहा गया है, मालिक बिन दीनार इस साल इतने लोग हज करने के लिए आए थे, सबके हज को कबूल कर लिया गया। हाँ हाँ, बल्कि की सरजमीन का रहने वाला एक हारून बल्खी है जिसके हज को मरदूद कर दिया गया है, उसके हज को कबूल नहीं किया गया है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले अब मालिक बिन दीनार सुबह को उठते हैं और उठने के बाद हारून बल्खी की तलाश करने लगे हैं। आप जानते जब मीना में खैमे लगते हैं तो हर मुल्क के हाजियों के खैमों में कोई न कोई निशानी लगा दी जाती है। ये हिंदुस्तान का हाजी है, ये अमेरिका का हाजी है, ये शाम का हाजी है, ये चीन का हाजी है, जापान का हाजी है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले जहाँ के हारून बल्खी थे, जब उस इलाके के लोगों से जाके मालूम किया है क्या तुम्हारे साथ कोई हारून बल्खी भी आया है? हाँ हाँ, हारून बल्खी आया तो है। कहाँ है वो? तो वो तमाम लोग कहने लगे तुम हारून बल्खी के बारे में पूछते हो, ये हारून बल्खी वो है जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, नमाज से वक्त मिलता है तो तस्बीह करता है, मिल्लत के नौजवान रात को लंबे लंबे सजदे करता है, दिन में रोजा रखता है, रात को कयाम करता है। बड़ा नेक है हारून बल्खी। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वाले मालिक बिन दीनार सोचने लगे जब हारून बल्खी इतना नेक है तो इसके हज को क्यों लौटा दिया गया, क्यों इसके हज को कबूल नहीं किया गया है। पता मालूम किया, लोगों ने कहा वो तो दीवाना है, कभी पहाड़ों में जाके इबादत करता है, कभी गलियों में जाके इबादत करता है, कभी खैमों में जाके इबादत करता है। अगर तुमको हारून बल्खी को तलाश करना है तो जाओ पहाड़ की वादियों में चले जाओ, कहीं सजदा करते मिल जाएंगे, कहीं रुकू करते मिल जाएंगे, कहीं तस्बीह तहलील करते मिल जाएंगे। तुमको दुखाने वाले सुनते चले जाएंगे। तलाश करते करते मालिक बिन दीनार पहुंच गए हैं। एक पहाड़ की तरफ जा देखा कि एक शख्स इबादत कर रहा है, कभी सजदा करता है, कभी रुकू करता है, कभी कयाम करता है, और जब नमाज से फारिग हो जाता है तो तस्बीह तहलील करता है। मालिक बिन दीनार ने जाकर के सलाम किया है और जब सलाम किया है तो हारून बल्खी ने जब इनके चेहरे को देखा और देख के सलाम का जवाब दिया है। पहली मुलाकात है, हारून बल्खी ने न नाम पूछा है, न आने का पता पूछा है, जब सलाम का जवाब दिया है तो ये कहते दिया है वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। माशाअल्लाह, सलाम या मालिक बिन दीनार। मालिक बिन दीनार हैरत में, कभी मुलाकात नहीं, पहले कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं, लेकिन नाम से सलाम का जवाब दे रहे। नाम से नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों बैठ गए, बैठ के चंद बातें की। माँ बाप के नाफरमान लोगों सुन लो, माँ बाप का दिल दुखाने वालों सुन लो, माँ बाप की खिदमत न करने वालों सुन लो। बैठ गए और बैठ के चंद मामलात पे गुफ्तगू हुई। मालिक बिन दीनार कहते हारून बल्खी ये बताओ कि जब तुम्हारे मुल्क के लोगों में पहुंचा
लोग कहते मुत्तकी है हारून बल्कि, नमाजी है हारून बल्कि, सजदा करने वाला है हारून बल्कि, रात को जाग के रात गुजारने वाला है हारून बल्कि, दिन में रोजा रखने वाला है हारून बल्कि, गरीबों की मदद करने वाला है हारून बल्कि, यतीमों के सर पे दस्त शफकत रखने वाला है हारून बल्कि। सबने तुम्हारी अच्छाई मुझसे बयान की है, लेकिन मैं भी ये कौनान का कलमा पढ़ने वालों, अभी मालिक बिन दिनार ये कह ही रहे थे तो हारून बल्कि ने कहा, ए मालिक बिन दिनार, तुम इस बात पे हैरत कर रहे हो कि जब इतने सजदे हारून बल्कि कर रहा है, रुकू हारून बल्कि कर रहा है, इतना मुत्तकी हारून बल्कि है, तो हारून बल्कि के हक को कबूल क्यों नहीं किया गया है? मालिक बिन दिनार कहते, हाँ, ये की सोच के तुझको तलाश करने के लिए निकला हो कि इतनी इबादतें करने के बाद दूसरे हक को कबूल नहीं किया गया है। मालूम मगर की मिल्लत के नौजवानों, हारून बल्कि ने जब सुना है, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं और रोते रोते कहने लगे हैं, हाँ, ये बात तो सही है कि मैं मुत्तकी परहेजगार नमाज पढ़ने वाला हूँ, लेकिन मेरी पहली जिंदगी वो लोग नहीं जानते। मालिक बिन दिनार, तुमको मैं बताना चाहता हूँ। कहा, बताओ तुम्हारी पहली जिंदगी क्या है? तो हारून बल्कि कहते हैं, एक दौर मेरे ऊपर वो भी गुजरा था कि शराब पी पी करके दोस्तों में बैठता था, पूरी रात दोस्तों की महफिलों में गुजारता था। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले ये हारून बल्कि कहते हैं कि शराब के नशे में इतना मस्त रहता था, इतना मस्त रहता था कि मुझे न अपनी कोई फिक्र रहती थी, न अपने माँ बाप की कोई फिक्र न रहती थी। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वाले हारून बल्कि कहते हैं, एक रात को मैं शराब पी के अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा नशे में जब अपने घर की तरफ में पहुंचा हूँ, वो घर के दरवाजे पे दस्तक दी है, दरवाजा खुला है, माँ ने मेरे दरवाजे को खोला है और माँ ने जब मेरे चेहरे पे निगाह डाली है, शराब के नशे में था मैं, शराब के नशे में था मैं, मुझको नहीं मालूम था कि मामला क्या हो रहा है। रब तबारक व तआला की इज्जत की कसम, ये मारूफ हारून बल्कि कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझको नसीहत की, लगते जिगर शराब ना पिया कर, तू शराब पीता है दिल को तकलीफ होती है, लोग तुझे बुरा कहते दिल को तकलीफ होती है। मिल्लत के नौजवानों, माँ कहती है, मेरे लगते जिगर, मैंने सुना है कि जो शराब पीता है जहन्नम में उसको रात और पीठ पिलाई जाएगी। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले हारून बल्कि की माँ कहती है, मेरे लगते जिगर, मैंने सुना है शराब से मुस्तफा ने मना किया है, नबी के सहाबा ने मना किया है, नबी के कौनैन की उम्मत के औलिया ने शराब को मना किया है। लगते जिगर, तुम कभी शराब मत पिया करो, आज के बाद कभी शराब मत पीना। मैंने इस हाथ से अपनी माँ को ढकेला और ढकेलने के बाद अपनी माँ से कहा, आइंदा मुझको ये नसीहत कभी मत करना। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, माँ हारून बल्कि कहते हैं, मैंने माँ को ढकेल तो दिया है, लेकिन मेरी बीवी आकर के कहने लगी, जुल्म कर दिया तूने, माँ को तूने ढकेल दिया है, माँ की बात को तूने नहीं माना है, माँ तुझको समझा रही थी, माँ के कहने पर तूने माँ को ढकेल दिया है। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों, हारून बल्कि कहते हैं कि मेरा दिल कांपने लगा, दिल धड़कने लगा, आंखों से आंसू जारी हो गए। रब की बारगाह में मैंने तौबा की है और तौबा करने के बाद जितना माल था सारा मैंने खर्च कर दिया और उससे लेकर के अब तक 40 साल की जिंदगी गुजर गई है। हर साल हज करने के लिए आता हूँ और जब हज करने के लिए आता हूँ तो किसी न किसी के ख्वाब में ये आ जाता है, सबके हज को कबूल कर दिया गया है, हारून बल्कि के हज को कबूल नहीं किया गया है, हारून बल्कि के हज को कबूल नहीं किया गया है, हारून बल्कि के हज को कबूल नहीं किया गया है। ये उसी जुर्म की सजा है कि जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को मारा था, वो अल्लाह का वली था हारून बल्कि, वो नमाज पढ़ने वाला था, वो रोजा रखने वाला था, वो ज़कात देने वाला था, वो गरीबों की मदद करने वाला था, वो यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला था। माँ को ढकेलने और माँ को सताने का अंजाम देखो। 40 साल लगातार हज तो गए हैं मगर उनके हज को कबूल नहीं किया गया है। क्या होगा उन बेटों का जो कभी नमाज नहीं पढ़ते, माँ को सताते हैं, रोजा नहीं रखते, माँ को सताते हैं। मिल्लत के नौजवानों, कुरान की तिलावत नहीं करते, माँ को सताते हैं, दिन में गालियां देते हैं, माँ को सताते हैं, बाप को ठोकर लगाते हैं। मैं ऐसे बेटों से गुजारिश करना चाहता हूँ, जलसे के बाद चले जाना, माँ नाराज हो तो कदमों पे गिर जाना, बाप नाराज हो तो कदमों पे गिर जाना और माँ बाप से पहले माफी मांग लेना। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तूने 2 आंसू माँ बाप के
दोस्तों माँ का दिल पत्थर नहीं है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बाप का दिल बड़ा नरम होता है, माँ का दिल बड़ा नरम होता है, बाप का दिल बड़ा नरम होता है, और इतना नरम होता है कि बेटा माँ को गाली देता रहे, माँ कभी बद्दुआ नहीं करती, बेटा बाप को गाली देता रहे, बाप कभी बद्दुआ नहीं करता। देख देख दुनिया में किसी और को गाली, तुझको पता चल जाएगा। मैं तुझसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप की खिदमत कर ले, और अगर तूने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली, हुई अलगली की सरजमीन पे तू माँ बाप की खिदमत करेगा, मदीने से तेरे नबी की आवाज आएगी, इससे इसके माँ बाप भी राजी है तो इससे इसका अल्लाह भी राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। भाई मैं आवाज की थोड़ा कीजिए। माशाअल्लाह हमारे मुजाहिद अहले सुन्नत मौलाना मुश्ताक साहब भी जलवाबार है। और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाजी मुश्ताक साहब हैं बैठे हैं, और भी उलमा हैं। ये वो है कि आपकी कर्नाटक, आपके कर्नाटक का नाम पूरे मुल्क के उलमा काजी मुश्ताक साहब को जानते हैं। बोला अच्छा कलम है इनका, बहुत अच्छा कलम है। हाँ, अपने तो खुश होते हैं और बेगाने इनके कलम से परेशान रहते हैं। हाँ, परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला मजीद जोर कलम अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। तो कभी अपने माँ बाप को मत सताना, कभी नहीं यार। अगर गलती हो जाए ना तो आप रात को चुपके से आके अपने माँ बाप के कदमों को दबा देना है, कदमों को। अल्लाह की कसम, जो दिल तेरे माँ बाप के पास है वो किसी के पास, बोलो किसी के पास नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात दिल से बताना हुई हड़गली वालों, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामती अता फरमाए। आमीन दिल आमीन। से बताना, दिल से, और बहुत मोहब्बत से तकरीर को समाप्त करना। माँ बाप किस किस के हैं जरा वो हाथ उठाइए, जिनके जिंदा हैं, जिनके जिंदा हैं, है ना। अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, है आमीन ना। आमीन। अब हाथों को नीचे कर लो, हाथों को। तुमने न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, न जाने कितने, जो शाम को आते हैं ना, शाम को माँ बाप के एहसान को तुम कैसे भुला पाओगे यार, कैसे भुला पाओगे। शाम को तुम अब आते हो कि जब तुम्हारे माँ बाप ने 25 साल का पाल के तुमको जवान कर दिया। कितने साल का? 25 साल का तुमको पाल के जवान कर दिया, शादी कर दी। एक दिन वो भी था, एक दिन वो भी कि जब शाम को शादी से पहले लौट के आते थे ना वापस शाम को, तो कुछ न कुछ चीज ला करके अपने माँ बाप के पास देते थे। अम्मा ये दिन की इतनी कमाई है, लो ये तुम्हारे लिए है। माँ के हाथ में लाके दे दी, बाप के हाथ में लाके दे दी, लेकिन शादी हो गई, शादी। अब वही बेटा माँ बाप के घर या कमरे को अलग कर दिया। अब रात को अपनी बीवी के लिए कोई चीज शाम को अपने मिल्लत के नौजवानों बाजार से लेके आया है, लेके आया है बाजार से, लेकिन अब तुझको हो क्या गया है, दिल तो तेरा अब भी वही है, जिस्म तो तेरा अब भी वही है, लेकिन पहले शादी से जब कोई चीज लाता था पहले अपनी माँ को देता था, अपने बाप को देता था, लेकिन आज जब तू अपने घर लेके आया है तो माँ के कमरे से चीज को छुपा लिया है, माँ के कमरे से उसको छुपा लिया है, और छुपा के अपनी बीवी के गोद में लाके डाल दिया है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले जरा दिल पे हाथ रख के सुनता तो चला जा, ये तेरी माँ बाप का, तेरे माँ का मकाम है, तेरे बाप का मकाम है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, इस दुनिया में कोई भी तुमसे सच्ची मोहब्बत इतनी नहीं करता जितनी सच्ची मोहब्बत दुनिया में तेरा बाप तुझसे करता है, तेरी माँ तुझसे करती है। नबी के कौनैन से कलमा पढ़ने वाले जरा देखता चला जा कि बैंगलोर से एक बेटा कमा के आया है, एक बीवी का शोहर कमा के आया है, और बेटों का बाप कमा के आया है। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वाले बेटे ने फोन कर दिया कि सुबह को, और फोन करके बीवी से कहा शाम को आने वाला हो, बेटों से कहा कि शाम को आने वाला हो,
माँ को भी पता चल गया जो घर में 80 साल की उम्र में कोने में बैठ के जिंदगी गुजार रही है, उसको भी पता चल गया कि 2 साल का कसीर जमाना गुजारने के बाद मेरा बेटा आज शाम को घर आने वाला है। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वाले, लेकिन जब शाम को बेटे के आने का दरवाजे पे वक्त हुआ है, बीवी भी अपने शौहर की रास्ता तक रही है, बेटे भी अपने बाप का रास्ता तक रहे हैं, और ये 80 साल की माँ भी अपने लखते जिगर का रास्ता तक रही है। शख्सियत के जिसके चेहरे को देखने के लिए आप बेताब रहते हो, है ना, वो अजीम शख्सियत हमारे काजी साहब और मौलाना मुफ्ती नासिर साहब ये तशरीफ ले जा रहे हैं, क़यामगाह तक पहुंचेंगे और वहीं से सरकार गुलजार मियाँ के साथ ये अजीम शख्सियतें आएंगी। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आज दिल भर के देखना अपने मुर्शिद को, दिल भर के देखना अपने मुर्शिद को, और उस मुर्शिद को कि जिस पे ताजु शरिया भी एतमाद और भरोसा करते थे, है ना, उस अजीम मुर्शिद को दिल भर के देखना। आसरा देखता चला जा। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले मिल्लत के नौजवानों, बीवी भी दरवाजे पे तेरी आमद का इंतजार कर रही है, बेटे भी दरवाजे पे आमद का इंतजार कर रहे हैं, और एक कोने पे खड़ी हुई 80 साल की माँ भी तेरी आमद का इंतजार कर रही है। लेकिन जरा देखता चला जा, जब बीवी के सामने तू आता है, बेटे के सामने तू आता है, अपनी औलाद के सामने तू आता है, तो बीवी की नजर तेरी जेब पे होती है, तेरे सामान पे बीवी की नजर होती है। जब बेटे देखते हैं तो बेटों की नजर भी तेरे हाथ पे होती है। अब्बू लाए क्या है, बीवी कहती है शोहर लाया क्या है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, बहनों की निगाह तेरे सामान पे, बेटों की निगाह तेरे सामान पे, बीवी की निगाह तेरे सामान पे। लेकिन हाँ, दरवाजे के किनारे पे खड़े हुए 80 साल का वजूद लिए हुए एक बूढ़ी औरत भी है कि जिस बूढ़ी औरत का निगाहें तेरे हाथ के सामान पे नहीं है, तेरी जेब पे नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, ये 80 साल की बूढ़ी माँ अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होकर के तेरे सामान के इंतजार नहीं करती है, तेरी दौलत का इंतजार नहीं करती है। ये 80 साल की बूढ़ी माँ दरवाजे पे खड़े हुए इसलिए इंतजार कर रही है, अपने बेटे के चेहरे को देख लूं, अपने बेटे के हाथ को देख लूं, अपने बेटे की सरापा को देख लूं। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले, बीवी की मोहब्बत लालच की है, बेटों की मोहब्बत लालच की है, दूसरों की मोहब्बत लालच की है। हाँ, इस दुनिया में अगर बगैर लालच के किसी से कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ अपने बेटे से बगैर लालच के मोहब्बत करती है, या बाप अपने बेटे से बगैर लालच के मोहब्बत किया करता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। में लालच नहीं होती, बहुत खूब, लालच नहीं होती, इस मोहब्बत में लालच नहीं, ये सच्ची मोहब्बत है यार, ये सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। और जरा देखता चला जा और देख, जिस माँ की बातों को तू नहीं मानता, जिस माँ की बातों को नहीं मानता यार, जवान बेटे का जब इंतकाल होता है ना, जवान बेटे का, बीवी है रोती जरूर है, बेटे हैं रोते जरूर हैं, सब है घर में, सब रोते हैं उसकी मस्जिद पर। अब ये उलमा जानते हैं कि रोना किस हैसियत से कितना जायज और कितना नाजायज, वो सारे मामलात ये जानते हैं। लेकिन सुनिए, मस्जिद पड़ी है, मस्जिद पड़ी है जवान बेटे की, अभी चंद साल पहले शादी की है साहब, अभी चंद साल पहले शादी की है, ये बात सही है। मिल्लत के नौजवानों, बीवी भी रोती है जनाजे के पास, ये बात सही है कि बेटे भी रोते हैं जनाजे के पास, लेकिन बीवी का रोना किस लिए कर? क्या तुम जानते हो मिल्लत के नौजवानों, बैठ जाइए बैठ जाइए, जाइएगा माँ, हजरत यही तशरीफ ले, हजरत शाह सैयद गुलजार मियां साहब की बला यही तशरीफ लेके आ रहे हैं। वो अजीम शख्सियत आ रही है कि जिनके चेहरे को देख के कई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। ये अजीम शख्सियत तशरीफ ला रहा है कि गुनहगार देख ले तो गुनाह छोड़ दे, शराबी देख ले तो शराब पीना छोड़ दे, जुआरी देख ले तो जुआ खेलना छोड़ दे। ये वो अजीम शख्सियत तशरीफ लेके आ रही है कि जिनके चेहरे को देखो तो देखते रह जाओ, और जमाना ये कहता चला जाता है, देखो देखो, जब मसौली के गुलजार के चेहरे का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा
के चेहरे का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, बिल्कुल आप हजरात बैठ जाएं, अदब से बिल्कुल बैठ जाएं। ये वो स्टेज नहीं है, ये वो नहीं है कि कमरे में बिठा करके मियां वीडियो बना के नस्ल कर दी जाए। ये वीडियो का राज नहीं, गुलजारे मिल्लत तो दिलों पे राज करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। रोकना मत, रोकना मत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोलो बोलो जोर से बोलो। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। जिंदगी में दूसरी बार इतना बड़ा इनाम हुआ है। यूं तो रूहानी इनाम तो हर वक्त होता है। एक बार लखनऊ में तकरीर कर रहा था मैं, लखनऊ में, तो मुहर्रम कम होता था, मैं गुफ्तगू कर रहा था। हजरत की जेब में जो था दिया, और आज हजरत तेरे लाइव सुन रहा था, अजमत वाली बहन पे बोल रहे थे, दिल खुश हो गया। हजरत ने सीने से लगाया और बोला लल्ला ये लो, ये इनाम मेरे लिए बहुत कीमती है। इसलिए ये ऐसे वैसे मिल्लत का नहीं है, गुजारे मिल्लत का है। बहुत है मेरे लिए, बहुत है। सुनो यार, सुनो मोहब्बत के साथ, ये गुजारे मिल्लत है। ये बाबू नहीं, ये कुछ नहीं, दीवानों को देखने दो। हाँ, दीवानों को रोकना मत। उलमा थोड़ा करम फरमाए और हजरत का दीदार ताकि सब कर ले। और उधर जो खड़े सारे लोग इधर आ जाओ, उधर जो खड़े हो सारे लोग आ जाओ, कमेटी वाले हो। जुब्बा देख रहे हैं? अरे जुब्बा देख रहे हैं? इन्हीं का है। किनका है? इन्हीं का है। जिसने सिला है वो अजमत वाला वो भी है, क्योंकि गुलजारे मिल्लत के जुब्बे को सिला है। बेंगलोर में प्रोग्राम हो, जुब्बा अपना पहनते हैं, अपना। हरगली में प्रोग्राम हो, जुब्बा अपना पहनते, अपना। शिमोगा में हो, जुब्बा अपना पहनते। कभी उनसे नूरुल औलिया में जाके देखना, हाथ तो यही होगा, चेहरा तो यही होगा, जिस्म तो यही होगा, लेकिन जुब्बा इनका नहीं, जिस्म पे जुब्बा मौला अली का होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। इज्जत करना। तरस तरस के आए वो है शेर मसाली। सुनो, सुनो। तरस तरस के आए वो है शेर मसाली। को कुर्बान करके वो है सुन्नी रज़वी है। सुनो, सुनो। गए थे इनके सिलसिले के दादा पीर, दादा पीर। जब दीनी उलूम पूरे हो गए तो रूहानियत के लिए अपने पीर के पास, किसके बोलो, अपने पीर के पास खिदमत की। और जब खिदमत की तो जिक्र कर रहे थे पीर, जिक्र। मिल्लत के नौजवानों, इनके दादा पीर कहने लगे हैं कुछ उनकी बारगाह में, तो वो बोले क्या बार बार कुछ कहते हो। दिल को थोड़ा मामला कुछ हुआ, वहां से चले आए। और अभी चले आए थे ना, रात में इनके ख्वाब में सरकार मौला अली आ गए। मौला अली, और मौला अली आके बोले तुमने मेरे बेटे को यहाँ से भेज दिया। कहा उसको मुरीद क्यों नहीं किया, क्यों मुरीद नहीं किया। तो मिल्लत के नौजवानों वो कहने लगे सरकार अब कर लूंगा। तो मौला अली सरकार बोले अब तो हमने खुद मुरीद कर लिया है, खुद मुरीद
कर लिया है, उस अजीम बारगाह का शहजादा है सरकार गुलजारे मिल्लत। साहिब सुनो मोहब्बत के साथ, हाथ में हाथ दे देना, हाथ में हाथ दे देना। ओ यार, बहुत से लोग अब तो स्टेजों पे हजरत के ताल्लुक से, किसी के ताल्लुक से, किसी हजरत के ताल्लुक से, किसी उसके ताल्लुक से, हम तो ये कहते हैं कि जो बरेली का गुलाम है वो हमारा है, जो बरेली का गुलाम। और ये शख्सियत वो है, चलते हैं तो बरेली, उठते हैं तो बरेली, बैठते हैं तो बरेली, खाते हैं तो बरेली, पीते हैं तो बरेली। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 2 साल पहले तकरीबन बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम के मज़ारे पाक के सामने रात को 2:30 बजे जब महफिल लगती थी ना, तो सामने गौसे आजम का मज़ार है और उसके सामने गौसे आजम का लश्ते जिगर गुलजारे मिल्लत अपनी आंखों से मकबूलियत है सरकार गौसे आजम की बारगाह से गुलजारे मिल्लत को, है गुलजारे मिल्लत को। साहिब मुरीद हो जाना, मुरीद अहले सुन्नत वल जमात और मसलक आला हजरत का काम करने वाली अजीम शख्सियत, जिस पर सरकार ताजु शरिया भरोसा करते थे और अब मेरे कायदे मिल्लत भरोसा करते हैं, कायदे मिल्लत भरोसा करते। सुनो, कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी मत दुखाना, प्यार करना माँ बाप से। कोई गलती हो जाए तो आकर के माँ बाप के कदमों को चूम लेना, हाँ माफी मांग लेना माँ बाप से, इसलिए कि माँ बाप का दिल बड़ा नरम है। कभी बीवी के चक्कर में आकर आज पूरी दुनिया गुलजारे मिल्लत के हाथ चूम रही है ना, मौका मिले तो जूतियां चूम रही है। गुलजारे मिल्लत से मुसाफा करने के लिए बेताब है ये पूरी दुनिया के गुलजारे मिल्लत, तुम इनके हाथ चूमने बेताब रहते हो, लेकिन ये मेरा गुलजार भी जब घर से निकलता है तो अपनी माँ के हाथ चूमता है, तो अपनी माँ के हाथ चूम के आता है। इनसे पूछो माँ की अजमत, इनसे पूछो माँ का वकार, जिंदा हो तब माँ की खिदमत करो और तुम्हारे माँ बाप मर जाए तब भी माँ बाप की खिदमत करो। वो कैसे? मेरे नबी इरशाद फरमाते, मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी यौमिल जुमाअति गुफिर लहु मा तक़द्दमा व कुतिबा लहु बराअ। जरा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते, जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक मर जाए, इंतकाल कर जाए और जब वो कब्रिस्तान चले जाए तो हर जुमा को अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करना और कब्र की ज़ियारत करना। रब तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं, तुम माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। और उलमा कहते अंदाज ये होता है, जब कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे जाता है, कोई बेटा अपनी माँ की कब्र पे जाता है, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वाले और कब्र पे जब माँ को सलाम करे, अपने बाप को सलाम करे, तो रब के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला आज एक बेटा अपने बाप की कब्र पे आया है, एक बेटा अपनी माँ की कब्र पे आया है। रब फरमाता, हाँ फरिश्तों आया है। फरिश्ते अर्ज करते, मौला जब दुनिया में बेटा अपने बाप के पास जाता था, अपनी माँ के पास जाता था, तो माँ कुछ देती थी, बाप कुछ देता था। माँ अपने बेटे को प्यार करती थी, बाप अपने बेटे को प्यार करता था। आज भी तो एक बेटा अपने बाप की कब्र पे आया है। वो तबारक व तआला के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तबारक व तआला जब दुनिया में जाता था तो बेटे को माँ कुछ देती थी, बाप कुछ देता था। अब तो इसकी माँ का हाथ काम नहीं करता, जहन काम नहीं करता, हाथ नहीं हिलते, दिल इसका काम नहीं करता। नबी जो कौनैन का कलमा पढ़ने वाले फरिश्ते कहते हैं, उलमा फरमाते कि अब ये क्या दे सकता है, तो रब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों सुन लो, अगर अब इसका बाप अपने बेटे को नहीं दे सकता, इसकी माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती, तो इसके बाप का रब तो दे सकता है, माँ का रब तो दे सकता है। फरिश्ते कहते, रब तेरी अता तो बहुत बड़ी है, तेरा काम तो बहुत ज्यादा है। रब तबारक व तआला फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज एक बेटा अपने बाप की कब्र पे आया है, अपनी माँ की कब्र पे आया है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो बेटा अपने माँ बाप की कब्र पे आया है, आने की वजह से मैंने इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया है और माँ बाप के कदमों की बरकत से मैंने इस आने वाले बेटे
کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، دکھانا کبھی ماں باپ کا پیار کرنا، محبت کرنا، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ماں کا دل دکھاؤ گے تو کبھی سکون ملنے والا نہیں بولو، کبھی نہیں، سکون بے ملنے شک. والا نہیں ہے، نہیں ہے. آج بھی ماں کا آنچل پکڑ کے دعا کرتے ہیں، آج بھی ماں کا آنچل پکڑ کے دعا کرتے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں، آج تم دوستوں کی محفل میں نہ جاتے ہو نا، شراب پینے، جوا کھیلنے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے گھر سے نکلتے ہو. ماں چاہتی ہے بیٹا زیادہ دیر تک باہر نہ رہے، جلدی آ جائے. ماں سے نہیں پوچھتے، باپ سے نہیں پوچھتے. لیکن آج میرا گلزار ملت جب گھر سے نکلتے ہیں نا، گھر سے ہے نا، نکلتے بعد میں ہے ماں باپ کی، ماں کی دعا پہلے لیتے ہیں، ماں کی دعا پہلے لیتے ہیں، اور روحانی طور پہ باپ کی دعا پہلے لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے اقبال کو بلند فرمائے، بلند فرمائے. یہ امانت ہے اہل سنت والجماعت، امانت ہے. کبھی بھی ملت کے نوجوانوں کسی سنی پیر کی نفرتوں کو دلوں میں مت پالنا. ہاں اب سنو دوسری چیز، یہ گفتگو میری ختم ہو گئی. مفتی ناصر صاحب ہیں، نعت شریف ابھی پڑھی جانی ہے. لوگوں بہت زیادہ تکلیف